Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, I think we have covered 3 videos of this particular chapter, and the name of this chapter is globalization. So we have covered most of the points of the globalization. As earlier, I have already discussed about what does the means of globalization, what is globalizations, and under the consequences we have already I have already explained the economic consequences and political consequences. On the same series today, we will move forwards towards the next consequences, that is cultural consequences. ठीक है, as we have already discussed about that what are the economic reason means consequences and the political reasons of the globalization, and how the globalization is beneficial for the economy and political purpose. Here we see that what kinds of the things and the changes has taken places due to the cultural tracking and cultural spreading through the globalizations. ठीक है, so as we know that we live in the different cultures, and sometimes we follow the systems of some western cultures too. ठीक है, cultures linked with the mythology and the practice of doing any kinds of the rituals or any kinds of the activities of living. This बेसिक थिंग्स इज़ जनरली अ कल्चर, कि कैसे हम रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, एक लिविंग स्टाइल एक हमारा स्पेसिफिक कल्चर है. So here we discuss about that how the globalization is a helping tools for that. Globalization affect us in our home, in what we eat, drink and wears. देखिए, this is all about the culture. जैसे हम जनरली देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है. Okay, so just as we were talking about the culture, कि living style of the western culture and living style of the Indian culture is quite different. ठीक है, जैसे कि वहाँ का जो ड्रेसिंग है, what generally we drink, what generally they wears, this is quite different from our culture, कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं. अब देखिए, एज आई टोल्ड, द ग्लोबलाइजेशन इज़ अ टर्म्स ऑफ द फ्लो ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो अभी हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे कल्चर में कौन सी चेंजेस आई है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. समथिंग वी स्टार्ट ईटिंग्स दैट अर्लियर वी वर नॉट aware about the nutritional values and other things of this kinds of things. We start wearing a different kinds of clothes, earlier we not. तो कैसे वो old techniques को अब हम लोगों ने न्यू तरीके से चेंज किया. This all we'll discuss about the cultural consequences, कि हम पूरी तरीक़ों से कैसे अपने कल्चर और वेस्टर्न कल्चर यानी वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के कल्चर और अपने कल्चर के साथ कैसे मिक्स हो रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर्स को बिलोंग नहीं करती हैं, जो हम लोगों ने अदर कल्चर से अडॉप्ट की हैं. तो जब फ्लो ऑफ कल्चर है या इन्फॉर्मेशन है, तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लीड टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर्स और व्हाट वी कॉल द कल्चरल होमोजेनाइजेशंस. ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म कल्चर है, यानी कहीं ना कहीं पे ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड का कल्चर को यूनिफॉर्मिटी दे दी. ऑलमोस्ट एक समानता आ गई है. यूनिफॉर्म का मतलब एक सा दिखने वाला कल्चर. कुछ चीज़ें उन लोगों ने हमारी अडॉप्ट की और कुछ हमने उनकी अडॉप्ट की है. तो अगर हम उस कल्चर को और अपने कल्चर को मैचअप करेंगे या मिक्सअप करेंगे, उसके बाद या चेक करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों के कल्चर में अब सिमिलरिटीज़ हैं. पहले दोनों के कल्चरों में डिफरेंसेस थे. ठीक है, ग्लोबल कल्चर इज़ इम्पोजिशंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो ग्लोबल कल्चर है वो किसकी इम्पोजिशन में इस टाइम? वेस्टर्न कल्चर के. हम लोग देख सकते हैं वेस्टर्न स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग हम लोगों ने अडॉप्ट करा है. इसके अलावा वेस्टर्न स्टाइल ऑफ फूड्स एंड अदर्स थिंग्स, दैट ऑल थिंग्स वी हैव अडॉप्टेड. ठीक है, द पॉपुलरिटी ऑफ द बर्गर or a blue jeans, some argues has a lot to do with the powerful influence of the American way of life. ठीक है, यानी अब जैसे मान लो एक बर्गर वगैरह अब हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, जो हमारे इंडियन कल्चर या इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स में ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन अब इनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आई. दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन, कि जो चीज़ें जो फूड आइटम्स थे या द क्लोथ्स दैट वी वियर्स विच अवेलेबल इन सम अदर कंट्रीज़ अर्लियर, बट नाउ दे आर विद अस. अब ये हमारे साथ हैं. तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है, कि इंफॉर्मेशन, कल्चर, आइडियाज़, कमोडिटीज़, इन सब का फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दिस इज़ व्हाट अ ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो आर्ग्यूज़ करते हैं कि जैसे ये जीन्स था,
या ब्लू जीन्स को पहनना है, या यू कैन से दैट लाइक ईटिंग अ बर्गर और एनीथिंग एल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेरिकन कल्चर्स, ठीक है। द कल्चर ऑफ द पॉपुलरिटी एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव इट्स imprint on the less powerful society. The culture of the politically and economically dominant, पॉलिटिकली डोमिनेंसी और इकोनॉमिकल डोमिनेंसी का जो कल्चर है उसने क्या किया, अब जैसे सोसाइटी क्या था, पहले रिलेशंस हुआ करते थे एक दूसरे से, अब क्या है, जो किसका डोमिनेंस है, जो पॉलिटिकल पर्सन है उसका डोमिनेंस है सोसाइटी पे, नहीं तो जो अमीर है उसका डोमिनेंस है। तो ये आपका जो है वो लेस पावरफुल सोसाइटीज़ पर जब इन चीज़ों का डोमिनेंस होना शुरू हो गया तो मेडोनालिशंस ऑफ द वर्ल्ड होना शुरू हो गया, यानी कि अब क्या है, जो लेस पावरफुल है, यानी आप कह सकते हो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर आपका लेस मनी है या लेस इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है या जो पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सोसाइटी डोमिनेंस में आ जाती है ऐसी सोसाइटी के जो ज़्यादा पैसे, यानी आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट जो है वो फैलना शुरू हो गया। ओके सो तो ऑल दिस थिंग कि कैपिटलिस्ट फॉर्म में जो है वो कल्चरल बेसिकली स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। इट लीड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चर्स हेरिटेज ऑफ द इंटायर ग्लोब। It would be a mistake to assume that the culture consequences of globalization is only negative। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अभी हम लोग कल्चर की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ वेस्टर्न कल्चर या पूरी सोसाइटी ऐसी है जो जिसके पास पैसा है या जिसके पास पॉलिटिकल डोमिनेंसेस हैं, उनका डोमिनेंस है सोसाइटी पर। बट डोंट गो फॉर दिस वे, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो सम इन कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज फ्यू थिंग्स आर वेरी गुड दैट वी हैव अडॉप्टेड एंड फ्यू आर वेरी मच बैड, फ्यू आर वेरी मच बैड एंड फ्यू आर वेरी मच गुड। तो ये हमारे कल्चरल जनरल कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। इट लीड्स टू द ईच कल्चर बिकम्स मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। दिस फिनोमिनल इज कॉल्ड द कल्चर हेट्रोजेनाइजेशंस। देखिए इट लीड्स टू द ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशंस, ठीक है। तो अब ये क्या है, कुछ ग्लोबलाइजेशन में कल्चर्स ने डिफरेंसेस भी किए, उनको डिस्ट्रक्टिव भी बनाया, तो जिसने उसको और ज़्यादा हेट्रोजेनाइजेशन बनाया। देखिए बट सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज ऑफ आवर चॉइस, हमारी चॉइस को जब बढ़ाते जाते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में सब कुछ होमोजीनियस हो गया, सारे कल्चर मिल गए, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। देखिए जब हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे, अडॉप्ट करते हैं, तो जब हम अडॉप्ट करेंगे उस चीज़ को, जैसे मान लो हम वेस्टर्न कल्चर को इंडियन कल्चर के साथ अडॉप्ट करते हैं, मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने में जो होमोजीनियस कुछ वो भी करते हैं वो हम भी करते हैं, तो सेम चीज़ें हो गई। इसके अलावा जब हम मिक्स करने के बाद जो सेकेंड टर्म्स की कंडीशन की बात करते हैं, तो उसमें जब हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की सिचुएशन की बात करेंगे, तो जब हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की सिचुएशन की बात करेंगे तो हम इस बात को देखेंगे या इस बात को अडॉप्ट करेंगे कि वो जो कल्चर है जो हम लोग ने अडॉप्टेड जनरली किया हुआ है, उसके साथ एक बड़ी सी ये है कि हम लोग कैसे उस कल्चर से डिफरेंट है। क्योंकि जब हम दोनों कल्चर्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमको उन दोनों कल्चर्स के डिफरेंसेस भी आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए द बर्गर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर द मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट पोजेस द रियल चैलेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब दोनों में मिक्सअप भी हो गया, होमोजेनेसी भी आ गई, और यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें को अडॉप्शन भी हो गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सारी वेस्टर्न चीज़ों को या किसी ने सारी वेस्टर्न चीज़ों को ही अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के साथ साथ भी नेवर फॉरगॉट्स आवर थिंग। देखिए जैसे ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद आ होमोस्पियंस खादी एंड कुर्तास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंसेस भी देखे गए हैं। जब तक डिफरेंसेस नहीं देखे जाएंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ बेटर है, कहाँ पर कौन सी नहीं। जहाँ पे खादी कुर्ता बेटर है तो वहाँ पे खादी कुर्ता अडॉप्ट किया गया, और जहाँ जीन्स बेटर है वहाँ पे जीन्स को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ बेसिक थिंग्स ऑफ दैट कि हम हर एक टाइप के कल्चर्स को अडॉप्ट करने लगे, और कहीं ना कहीं पर ग्लोबलाइजेशन ने उस कल्चर की समझ दी हमको, क्योंकि हमारे पास उस कल्चर की बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वेस्टर्न में क्या है। वेस्टर्न कल्चर की वी आर नॉट हैविंग द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेस्टर्न कल्चर कि वहाँ पर कौन सी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। लेकिन अब क्या है, उस बेसिक कल्चर्स को जब तेज़ी से हम लोग समझने लगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने उस पर्टिकुलर चीज़ की फ़्लो किया हमारी तरफ, ठीक है। ओके अब हमें क्या है, उन सारे कल्चर्स की पूरी तरीक़ों से समझ है, और हमको पता है कि अब कैसे क्या करना है, कैसे क्या
नहीं करना है। हमने उस कल्चर को भी समझा है और हमने अपने कल्चर को भी समझा है। फिर हमने उस कल्चर को अपने कल्चर से कंपेयर किया कि उनके लिविंग स्टाइल कैसे हैं, हमारे लिविंग स्टाइल कैसे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने उन सारी इन्फॉर्मेशंस को जनरली कंपेयर किया है और कंपेयर करने के बाद उस इन्फॉर्मेशंस को आपस में मिक्सअप किया, मैचअप किया। जो दोनों में सिमिलरिटीज़ थी उनको अडॉप्ट किया गया और जो डिफरेंसेस थे उनको चेक किया गया कि कौन से डिफरेंसेस हमारे लिए बेटरमेंट के लिए हैं, जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कौन से हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।